శ్రీవారి కళ్యాణ ఉత్సవం. మహావిష్ణోః ఆజ్ఞయా ప్రవర్తమానస్య ఆద్య బ్రహ్మణః ద్వితీయ పరార్థే శ్వేతవరాహకల్పే వైవస్వత మన్వంతరే కలియుగే ప్రథమపాదే జంబూద్వీపే భారతవర్షే భరతఖండే శకాబ్దే మేరోః దక్షిణే పార్శ్వే అస్మిన్ వర్తమానే వ్యావహారిక శ్రీ ఆదివరాహ క్షేత్రే వెంకటాచలే అస్య దేవదేవస్య భగవతో నారాయణస్య శ్రియఃపదేః పురుషోత్తమస్య శ్రీభూమి నీలా సమేతస్య శ్రీ శ్రీనివాసస్వామినః కళ్యాణోత్సవం కర్మాంగం మమ. గృహస్థులు వారి యొక్క గోత్రాన్ని మనసులో స్మరించుకోండి. వారి పేరు, ధర్మపత్ని పేరు, కుటుంబ సభ్యుల పేర్లు, అందరి పేర్లు మనసులో స్మరించుకుంటూ వారి వారి కోరికలని, ప్రార్థనని స్వామివారికి విన్నవించుకోవాల్సింది. సహ కుటుంబానాం సహ పరివారాణాం సహ బాంధవానాం క్షేమస్థైర్య ధైర్య వీర్య విజయ అభయ ఆయుః ఆరోగ్య ఐశ్వర్యాణం అభివృద్ధ్యర్థం ఉత్తరోత్తర కైంకర్యాణం అభివృద్ధ్యర్థం శ్రీ శ్రీనివాసస్వామి కరుణ కటాక్ష వీక్షణ పరిపూర్ణ సిద్ధ్యర్థం లోకక్షేమార్థం కళ్యాణోత్సవం ఆచార్యముఖేన అహం కారయిష్యే. సర్వం శ్రీనివాసార్పణమస్తు. ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద గోవింద. సప్తగిరివాస ఏழ்మలయానే వేంగడవనే గోవింద గోవింద. శ్రీ వెంకటాచలాధీశం శ్రీయాత్యాసిత వక్షసం ஸ்ரிதச்சேதன மந்தாரம் ஸ்ரீனிவாசம் மகம்பஜே என்று அந்த திருமலையப்பனை செவித்துக்கொண்டு இன்றைய கல்யாண உற்சவத்தின் நேரடி ஒளிபரப்பின் வர்ணனையாளர் திருமதி ஏ. அருணா. இதோ சங்கல்ப மந்திரங்களை தொடர்ந்து சேனா முதலி எனப்படும் விஸ்வக்சேனருக்கு ஆராதனை சுத்தி புண்ணிய வச்சனத்தை செவிக்க இருக்கிறோம். பகவானையும் நாச்சிமார்களையும் பாதாதி கேசமாக செவிக்கலாம். பூரட்டாதி நட்சத்திரம் புரட்டாசி மாதம் 2வது நாள் புதன் கிழமை மற்றும் பிரதமையுடன் கூடிய இந்த புதன்கிழமை அன்று பகவானுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்தை நேரடி ஒளிபரப்பில் செவிக்க இருக்கிறோம். திருவேங்கடமுடையான் திருமலையிலே நித்தியவாசம் செய்து கொண்டிருக்கும் அந்த பகவான் வராக சுவாமியினுடைய அனுமதியினால் அந்த திருமலையப்பன் இங்கே நிவாசம் செய்து கொண்டு பக்தர்களை அருளி செய்கிறார். அப்படிப்பட்ட அந்த பகவானுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே இதோ இப்பொழுது விஸ்வக்சேனருக்கு ஆராதனை சுத்தி புண்ணியாவஜனத்தை சேவிக்க உள்ளோம். விஸ்வக்சேனருக்கு ஆராதனை எதற்கு செய்ய வேண்டும் என்றால், நாம் செய்யும் கைங்கரியங்கள் அனைத்தும் தடைப்படாமல் இருக்க, தடங்கள் இல்லாமல் இருக்க உதவுபவர் விஸ்வக்சேனர். அவருக்காக முதலில் ஆராதனை செய்து அதன் பிறகே சுத்தி புண்ணியாவஜனத்தை செய்ய உள்ளார். லக்ஷ்மி ரமண கோவிந்தா, தரா ரமண கோவிந்தா கோவிந்தா என்று தாயார்களையும் செவிக்கலாம். விஸ்வக்சேனருக்கு ஆராதனை செய்ய உள்ளார் அர்ச்சக சுவாமி. தசாவதாரங்களிலே மிகவும் விசேஷமான அவதாரங்கள் மனித உருவிலே எடுத்தவை. ராமாவதாரம், கிருஷ்ணாவதாரம், அதாவது நரசிம்ம அவதாரமும் கூட நரனும் நாராயணனும் ஆக சேர்ந்து அந்த
அவதாரத்தை எடுத்தவர்கள். அப்படி அந்த श्रीनिवासस्वामिनः பகவானை சேவிக்கலாம். वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं स्थण्डिलपरिवेशनाश्रभावतन्त्रविषदत्तं शान्तत्वं पुण्यावाचकर्मकरिष्ये निर्विघ्नसमाप्यर्थं विसक्षेनाराधनं तदङ्गपूर्वे करकाराधनं करिष्ये। ओं धारा सप्तशमान् शेषु सरसरसर्भूर्देषु अपोविरह्णान् परिपादेष्ये गुणां दत्तागं सर्गं शर्मा इदमापस्वा शुदमा शान्ता शान्तमा शुभा शुदमा पोदा पोदमा पुण्याः पुण्यतमा मेध्या मेध्यतमा मतां तरसाः पूता ब्रह्म पवित्रेण पुता सूर्यस्रस्वैः आपो वायुं सर्वं विश्वाभूतान्यापः प्राणावापः पशुवापो नमापो मध्वापो सम्राडापो विराडापो स्वराडापो छन्दागुष्यापो ज्योतिगुष्यापो यजुगुष्यापो सत्यमापो सर्वाधिपतापो भूर्भुवस्वरापो अस्मिन् कुम्भेङ्गाचरित्रमावाहयामि एतेषु सहस्रमज्ञापादाभिदा पुरुत्रा तेभ्यो नन्द्रस्तोद विष्णुर्श्वे देवां चन्द्रमतस्वस्या वरुणमावाहयामि प्रियसमावाहयामि रिक्तां प्रदरमावाहयामि यादस्मद्मावाहयामि वरुणाय नमः वरुणस्येदमासनं वरुणाय नमः इदं पाद्यं समर्पयामि इदमर्घ्यं समर्पयामि इदमाचमनं समर्पयामि सर्वोपचारार्थम् अक्षतान् समर्पयामि सर्वतीर्थलं पुण्यं पावनं सर्वकारणं विष्णुमादोद्धवं शुद्धं सर्वमङ्गलदायिना करिष्यमानसकर्मणा निर्विघ्नेन समाप्त्यर्थं विश्वक्सेनाराधनं करिष्ये। विश्वक्सेनं चतुर्बाहुं शङ्खेकसंनितं ज्यापतिं सङ्केतं शुष्पदवाहनं पूर्वाषाढोद्ध्वन्द्यं दक्षिणां समर्चयेत् आग्नेयस्माद्ददामहे त्वाश्वेदात्मयदोत्सम्भोः वैराजन्ते सुतनिधत्तां प्रेष्यां दिशावदानामनादि यामेस्तान् दन्तान् दातु ओं भूः पद्माकारण्डले विश्वक्सेनमावाहयामि शान्तमावाहयामि हरमावाहयामि अमितमावाहयामि तत्पत्नीं सूत्रतीमावाहयामि वामेज्यामावाहयामि तत्पत्नी सुस्वक्सेनस्येदमासनं विश्वक्सेनाय नमः इदं पाद्यं समर्पयामि इदमर्घ्यं समर्पयामि इदमाचमनं समर्पयामि सर्वोपचारार्थम् अक्षतान् समर्पयामि। विश्वक्सेन स्मृत राजा भगवान् सर्वकर्मणा तस्मान्यानुभासेता कर्मणान् विघ्नशान्तिये आरम्भे कर्मणान् पुष्टे विज्ञानान् परसमाप्य कुर्यात् सपरिवारस्य विश्वक्सेनस्य भोजनं भगवद्ब्रह्मणादः पुण्यं वाचयिष्ये। ओं वाच्यतां सुपुण्याहं करोमि कुरुष्वास्तप्रोक्षतमस्तु प्रजापति प्रेतां भगवान् प्रजापतिः शाम्यन्तु घोरान् शाम्यन्तु पापान् शाम्यन्त्वा इत्यः शुभानि वर्धन्तां शुभानि शाम्यन्तु घोरान् शाम्यन्तु पापान् शाम्यन्त्वा इत्यः शुभानि वर्धन्तां शुभानि शाम्यन्तु घोरान् शाम्यन्तु पापान् शाम्यन्त्वा इत्यः शुभानि वर्धन्तां शुभानि। ओं मतो देवावन्तनदा विष्णुचक्रमे पृथिव्याः सप्तधामिः इदं विष्णुचक्रमे त्रयधानि देवदं समूढमस्भागं श्री त्रीणि पदाचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन्ने विष्णोः कर्माणि पश्येतोः प्रधानि पश्यसि इन्द्रस्य जसखा तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन् सूर्यः दिवि वचक्षुरादं तद्विप्रास्वै वन्यवाजाद्रुवाग्निं तत्सविन्दते विष्णोर्यत्परमं पदं द्रविणोदा द्रोणशस्त्रस्य द्रविणोदा शिरस्य प्रयुंसते द्रविणोदा विरवतिषण्णो द्रविणोधाराः स्थितिर्घमायुः यत्पुण्यं नक्षत्रं तद्विष्करिताभविषं यदा वै सूर्योदयति अतनक्षत्रं नयति यावत् तत् सूर्यः गच्छेति तद्धन्यं वस्येति तावत् गुरुदत्कारी स्यात् पुण्याः यवकुरुते। ओं भूवतिपुरोक्तिष्ठायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनो वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं सर्वोपचारार्थं शान्तत्वं सपुण्यावातिर्मणि पुण्यां ब्रह्मत्वाः ब्रह्मन्तु पुण्यां कर्मणोऽस्तु कर्मण पुण्यां ब्रह्मत्वाः ब्रह्म पुण्यां कर्मणोऽस्तु करुणा पुण्यां ब्रह्मत्वाः ब्रह्म पुण्यां कर्मणोऽस्तु स्वस्त्रेन्द्रो दस्वास्त्र पूषा श्वेदाः स्वस्त्रस्ताक्षरिष्टिमि स्वस्त्र बृहस्पति ददातु अद्भुरोक्तिष्ठायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं स्थण्डिलपरिवेशनाश्रोतन्त्रविषदत्तं शान्तत्वं सपुण्यावातिर्मणि स्वस्तिं ब्रह्मत्वाः ब्रह्मन्तु कर्मणे स्वस्ति कर्मणस्तिं ब्रह्मत्वाः ब्रह्मन्तु कर्मणे स्वस्ति कर्मणस्तिं ब्रह्मत्वाः ब्रह्मन्तु कर्मणे स्वस्ति वृद्ध्यास्मवेनं संसिद्ध्यां तं देवमित्रधेर्नोऽस्तु अनुराधान् हविषावृध्यन्तः सञ्जीवं सदस्वेराः। ओं भूवतिपुरोक्तिष्ठायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं स्थण्डिलपरिवेशनाश्रोतन्त्रविषदत्तं शान्तत्वं सपुण्यावातिर्मणि वृद्धिं ब्रह्मत्वाः ब्रह्मन्तु कर्मरुद्धतां कर्मणुद्धिं ब्रह्मत्वाः ब्रह्मन्तु कर्मरुद्धतां कर्मणरुद्धिं ब्रह्मत्वाः ब्रह्मन्तु कर्मरुद्धतां वृद्धिः समृद्धिः पुण्यासमृद्धिः आपोहिष्टां योभोस्थानो उज्जयितादनां हेरणा चक्षे योवस्वतमारदस्तस्य भार्यतेनः वृष्टिर्मात्रः तस्मार्गमाभो शिक्षा जन्मधा आभोजनेधाजनः हिरण्यवर्णाश्च पावकायाः जातः कस्य भोजाः सुन्दरः अग्नेया गर्भं द्रविरूपास्तानः अपसृग्स्योना भवन्तु या सागं राजा वृणयाति मध्ये सत्याण्डते उपसञ्जनानां मदश्चयाः पावकास्तानः अपसृग्स्योना भवन्तु यासाहान् देवादिगृह्णन्ति भक्षय्या अन्तरिक्षे बोधा भवन्ति याः प्रतिबिम्बे सौन्दन्ति शुक्रास्तानः अपसृग्स्योना भवन्तु पवमानस्वर्जनः पवित्रेण विचर्षिणिः यः पोता सपनात्मा पुनन्तमादेव जनाः पुनन्तमनवोधिया पुनन्त विश्वायुवः जातवेदः पवित्रवति पवित्रेण पुनाहिमा शुक्रेण देवदिद्यते अग्ने कृत्वा कृतुम्रणु येन देवाः पवित्रेण आत्मानं प्रणदेशः तेन सहस्रधारेण पवमान्यः पुनन्तमां
प्राजापत्यं पवित्रं ततोऽद्यां गं हिरण्यं तेन ब्रह्म विदावयं भूतं ब्रह्म पुनीमहे इन्द्रस्तुनीति सहमाप्नातु सोमस्वस्त्यावरुणस्समीच्या यमो राजाः प्रवणाभिः पुनातमा जातवेदामूर्जयन्त्वाप्नातु तच्छयोरावृणीमहे गातिं यज्ञाय गातिं यज्ञपते दैवीः स्वस्तिरस्तनः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वञ्जगातवेषं षण्णास्तद्यपदेः षण्चतुष्पदे ओम शांति शांति शांति। प्राचाहान्ति देवार्तिरा मार्जयन्तां दक्षिणायान्ति स्मासाः पितरा मार्जयन्तां प्रतीचाहान्ति शीघ्रः पशवः मार्जयन्तां उदीहीचान्दिशा वोषधयो वनस्पतयः मार्जयन्ताम् ऊर्ध्वायाहां यज्ञसंवत्सरो यज्ञपतिर्मार्जयन्ताम् अथो धराधरैर्नागेभ्यो मार्जयन्तां वास्तवः प्रजानि यस्मान् स्वावीशो अनमिव भवानः इत्येमे प्रदन्नो शश्वशिने दत्तपदेशं चुष्पदे वास्तवः स्वदेशमया संसदाति सक्षीमहि शरण्यागातमत्याः आवक्षयमतया गेवरन्नो यूयं पातस्वस्तभिस्सदानः अमीवः वास्तवः स्वदे विश्वारूपाण्याभिषन्ने सखा सेवयदिनः अनोरणीयान् महता महीयानात्मा गुहायां निदोष्यन्तोः तमः कदम्बस्तुतिविदशोको धातुप्रसादान् महिमानमीशं सप्तः प्राणाः प्रवन् सप्ताः सप्ताच्च समिधः सप्तजिह्वाः सप्तमे लोकाय चरन्ति प्राणा गुहास्यां निहिताः सप्त सप्ता वर्णान्मा सक्षनान्मः पुनः पाद्याजं समर्पयामि वर्णान्मा सक्षनान्मः यथा भासा गुडाभरणं वेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि सुवर्णपुष्पक्षणां समर्पयामि शोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च। ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய கோவிந்தா கோவிந்தா என்று அந்த திருமலை அப்பனை செவித்துக்கொண்டு கல்யாண உற்சவத்திலே விஸ்வக்சேன் ஆராதனை சுத்தி புண்ணிய வாசனத்தை தொடர்ந்து அங்குரார்ப்பண கைங்கரியத்தை செவிக்க இருக்கிறோம். 4000 திவ்ய பிரபந்த பாடல்களிலே பெரியாழ்வார் திருமொழி என்னும் பாசுரங்கள் அதிலே ஏராளமாக உள்ளன. அந்த பாசுரங்களை பார்க்கும் பொழுது ஒவ்வொரு அவதாரத்திற்கும் ஒரு சிறப்பினை கொடுத்து அந்த கிருஷ்ணாவதார காலத்திலே என்னென்ன செய்கைகள் என்னென்ன லீலைகள் என்பதை முழுதுமாக விளக்கி கூறியுள்ளார்கள். முதலாவது பத்திலே 4வது திருமொழியிலே அதாவது அம்புலி பருவத்தை பற்றி காட்டி சந்திர பகவானை கூப்பிடுகிறார்கள். தன் முகத்துக்கு சுட்டி தூங்கா தூங்கத்த வாழ்ந்து தூங்கா தவழ்ந்து போய் பொன் முகக்கிண்கிணியார்ப்ப புழுதி அலைகின்றான் என் மகன் கோவிந்தன் கூத்தினை இளமாமதி நின் முகம் கண்ணுளவாகில் நீ இங்கே நோக்கிப்போ என் சிறு குட்டன் எனக்கோர் இன்னமுது எம்பிரான் தன் சிறு கைகளால் காட்டி காட்டி அழைக்கிறான் அஞ்சன வண்ணனோடு ஆடலாட உறுதியேல் மஞ்சில் மறையாதே மாமதி மகிழ்ந்தோடிவா என்கிறான். அதாவது தாயானவள் குழந்தைக்கு அன்னத்தை சாதத்தை ஊட்டும் பொழுது அந்த குழந்தை சாப்பிடாமல் அடம் பிடிக்குமாம். அதற்காக வெளியில் கொண்டு வந்த அந்த குழந்தையை சந்திரனை காட்டி நிலவினை காட்டி சோறூட்டுகிறாளாம். அப்படி அழாதே அழாதே உனக்கு தாலேலோ திருவரங்கத்திலே பாம்பனையில் பள்ளி கொண்டிருப்பவனே உனக்கு தாலேலோ என்று அந்த சந்திர பகவானை குறித்து பாடி அவனுக்கு சோறூட்டுகிறாள். இதோ அங்குரார்ப்பண கைங்கரியத்தை முடித்துக்கொண்டு ரக்ஷா பூஜையை ஆரம்பிக்க உள்ளார் அர்ச்சக சுவாமி. சேவிக்கலாம். அப்படி தன்னுடைய பேய் உருவை மறைத்து
தாயான யசோதை வடிவிலே வந்த பூத்தனையின் விஷம் தடவிய முலைப்பாலை உண்டவனும் கரிய மேனியை உடையவனுமான கண்ணபிரானை உறங்கச் செய்வதற்காக யசோத பிராட்டி தாலாட்டியதை அந்த சொற்களால் வர்ணிக்கிறார் பெரியாழ்வார். அப்படி வேதங்களை ஓத வல்ல மறையவர்கள் வாழ்கின்ற ஓம் ஷண்ணோன்ஹப்தாம் துசோர்ஜப்தாம் ஸ்வயம்புரக்ரீம் தீம் தாயா நாகராஜமாவாஹயாமி சார்ஷேஷமாவாஹயாமி சேஷமாவாஹயாமி அனந்தமாவாஹயாமி பிரசரதேவதாभ्यो நமः. இதமாசனம் இதம் பாத்யம் சமர்ப்பயாமி இதமர்घ्यं சமர்ப்பயாமி இதமாத்யம் சமர்ப்பயாமி சர்வோபச்சாரார்த்தம் அக்ஷதான் சமர்ப்பயாமி. हरि ओम स्वस्ति नः मेधामिश्वनाभग स्वस्ति देवे दिनरुणः स्वस्ति पूषां सरोदातनः स्वस्ति द्यावाः पृथिवी सुचेतनः स्वस्तयेः वायुं बभ्रामहे सोमं स्वस्ति भुवनस्य अस्पतिः बृहस्पतिं सर्वगणं स्वस्ते स्वस्ते आदित्यासोः वन्दनः विश्वे देवानोः अद्य स्वस्ते वैश्वानरो वसृज्ञः स्वस्ते देवावन्त्रिभः स्वस्ते स्वस्ति नः आर्द्रः पात्वमसः स्वस्ति मित्रावरुणः स्वस्ति मध्ये रेवती स्वस्ति न इन्द्रश्च अग्निश्च स्वस्ति नः इते कृधि स्वस्ति बन्धामनुचरेम सूर्या चन्द्रमसामिव पणथताघ्नता जानता सङ्गमेमहि स्वस्ते नन्दार्क्षवृष्टनेमिं महद्भूतं वायसं देवतानाम् असुरघ्नमिन्द्रासकं समत्सु बृहद्यसो नावमारुहेम अम्हों चामाङ्गिरा सञ्जयन् च स्वस्त्यात्रेयं मनसाताक्षं प्रेतपाणिश्वरणं प्रपद्ये सुसं बाधे शुभयन्नोऽस्तु शुभगं शुभम्. இந்த ரக்ஷா பூஜையை தொடர்ந்து நாம் செவிக்கிருப்பது ரக்ஷா பந்தன கைங்கரியம். அதாவது அந்த கம்சனால் ஏவப்பட்ட பூத்தனை என்ற ராட்சசி குழந்தை கண்ணனை சம்ஹரிப்பதற்காக யசோதை வடிவிலே வந்தவளாம். அதனால் அந்த மாயலோலனுக்கு தெரியாதா என்ன? வேதங்களை ஓதவல்ல மறையவர்கள் வாழுகின்ற ஸ்ரீவில்லிபுத்தூரிலே அவதரித்த பெரியாழ்வார் அருளிய பாசுரங்களை குறைவில்லாமல் ஓதுபவர்களுக்கு துன்பம் என்பது இல்லாமல் போகுமாம். அப்படி ஆழ்வார்களால் மங்களாசாசனம் செய்யப்பட்ட அந்த எம்பெருமான் திருவேங்கடமுடையானுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே ரக்ஷா பந்தன கைங்கரியம் ஆரம்பமாகியது. அர்ச்சக சுவாமி செய்து கொண்டிருக்கிறார். அந்த முதலாவது பத்திலே 4வது திருமொழியிலே இவ்வாறு கூறுகிறார் சந்திரனை ஒப்பிட்டு. இளமை பொருந்திய சந்திரனே, தன் முகத்தில் இருக்கின்ற நெத்தி சுட்டியானது அசைந்து அசைந்து ஆடும்படியும் அழகிய முகம் கொண்ட சதங்கைகளானவை கிண் கிண் என்று ஒலி எழுப்பும்படியாகவும் தவழ்ந்து போய் தெருவிலே உள்ள புழுதி மண்ணை அலைகின்ற என்னுடைய பிள்ளையான கண்ணபிரான் செய்யும் கூத்துக்களை உன் முகத்தில் கண்ணிருக்கிறது என்றால் நீ இங்கே வந்து பார்த்து விட்டு செல் என்கிறாளாம். சந்திரனே, என் சிறு பிள்ளையான கண்ணன் தாயாகிய எனக்கு மிகவும் மதுரமான அமிர்தம் போன்றவனாக இருக்கின்றான். எம்பிரானான இந்த கண்ணன் தன்னுடைய சிறிய கைகளால் உன்னையே மீண்டும் மீண்டும் காட்டி அழைக்கின்றான். கருத்த மேனியை கொண்டு இவனுடன் விளையாட நீ எண்ணினாய் என்றால் மேகத்திற்குள்ளே சென்று மறைந்து கொள்ளாமல் மகிழ்ச்சியுடன் வேகமாக வருவாயாக என்கிறான். அதாவது 2வது பாசுரத்தில் என்ன கூறுகிறார்? சுற்று மொழிவட்டம் சூழ்ந்து சோதி பரந்தெங்கும் எத்தனை செய்யிலும் என் மகம் முகம் நேரவாய் வித்தகன் வேங்கடவாணன் உன்னை விழிக்கின்ற கைத்தலம் நோவாமே அம்புலி கடிதோடி வா என்கிறாள். அதேபோல் 3வது பாசுரத்திலே சக்கரை கையன் தடங்கண்ணால் மலரவிழ்த்து ஓக்கலை மேலிருந்து உன்னையே சுட்டி காட்டும் காண் தக்கதறியேல் சந்திரா சலனம் செய்யாதே மக்கட்பெறாத மலநடல் அன்னையேல் வாகண்டா என்றார். அதாவது உன்னுடைய ஒளி பொருந்திய மண்டலமானது
4 பக்கங்களிலும் சூழ்ந்து எல்லா இடங்களிலும் உன் ஒளி பறந்திருக்கும்படியாக நீ எவ்வளவு செய்தாலும் என் மகனான கண்ணபிரானுடைய திருமுக மண்டலத்துக்கு ஒத்தவனாக இருக்க மாட்டாய். ஆச்சரியப்படத்தக்கவனும் திருவேங்கடமலை திவ்ய தேசத்திலே எழுந்தருளி இருப்பவனுமான இந்த கண்ணபிரான் உன்னை அழைக்கின்றான். அவனது திருக்கைகள் நோகாதபடி நீ விரைவாக ஓடி வருவாயாக என்று எவ்வளவு உபமானங்கள், எவ்வளவு அர்த்தங்களுடன் அந்த பெரியாழ்வார் திருமொழியிலே பாசுரங்களிலே சந்திரனையும் கண்ண பகவானையும், அதாவது கிருஷ்ண பகவானையும் ஒப்பிட்டு பாடுகிறார் அந்த பாசுரத்திலே. அப்படி கிருஷ்ணாவதாரம் எடுத்தவன் இங்கே திருமலையிலே திருமலை அப்பனாக தரிசனம் தந்து கல்யாண உற்சவத்திலே ரக்ஷாபந்தன கைங்கரிய நடைபெற்று கொண்டிருப்பதை செவித்து கொண்டிருக்கிறோம். தராரமண கோவிந்தா கோவிந்தா என்று ஸ்ரீதேவி பூதேவி பிராட்டிமார்களுக்கு ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியத்தை செய்து கொண்டிருக்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. அடுத்ததாக அந்த அர்ச்சக சுவாமி தன்னுடைய கரத்திலே ஆத்மரக்ஷைக்கான அந்த ரக்ஷையை அணிந்து கொள்ளவிருக்கிறார். சந்திரனே திருச்சக்கரத்தை தன் கையில் ஏந்திய எம்பெருமானான கண்ணன் என்னுடைய இடுப்பில் இருந்து கொண்டு தன்னுடைய விசாலமான கண்களாலேயே நன்றாக பார்த்து தன் கைகளால் உன்னையே சுட்டி காட்டுகிறான். உனக்கு தகுதியானதை நீ உணருவாய் என்றால், பிள்ளை பெறாத மலடனாக இல்லை என்றால் கபடம் காட்டாமல் இங்கு வருவாயாக என்று விழிக்கிறார். இவ்வாறாக ஒவ்வொரு பாசுரத்திற்கும் மிக சிறப்பான அர்த்தங்களை கூறி அந்த சந்திர பகவானையும் கண்ணபிரானையும் ஒத்து இந்த பாசுரங்களை ஏற்றிருக்கும் பெரியாழ்வார் ஆழ்வார் திருவடிகளே சரணம் என்று சரணாகதி செய்யலாம். இதோ அக்னி பிரதிஷ்டை ஹோமம் ஆரம்பமாக உள்ளது. அக்னி ஆவாகனம் செய்து ஹோமத்தை செய்ய உள்ளார் அர்ச்சக சுவாமி. சேவிக்கலாம். அக்னி பகவானே கோவிந்தா கோவிந்தா. शुद्धैरुक्तैर्वाहार्धांशुं शुद्धाशीर्वाहान् मुक्तु मयि देवा दृढमय जनता मय्या शिरस्तमय देवोति देव्या होतारं जन्तव्यान् हव्यागोत सत्यामृतोम्यास्तु येन मानिगाहं कथमर्चनाहं विश्वे देवा स्वाधिवोचतामि उद्भन्यमानमस्यामि यद्यं पाप्मानमजमानस्सन्तु शिवानः सन्तः प्रदश्च सन्नो माताब्दी तावदादा बोधहिदनेन सौम्यात्मनः अष्टावन्दगमृतनाविदोहरं येन देवातो येन निष्क्रियाः यातवेदापं अग्निमश्रद्धादे विभागं समीगर्भादिवेदः पुनस्तं देवेभ्यो हव्यं बाणप्रजानन् आयप्रजामरीमस्मादे स्रोदिदेनोद्रोणे अग्नायानो अविदादे निहोदा सत्सवर्षि ऐतेन मनिस्वा नवतेन मनिस्वा सरस्तेन मनिस्वा देवशेतप्रसवा ब्रह्मजज्ञानं ब्रह्मसादिसिमस्रच वेनावः सबुद्ध्यामासविष्टाश्चानुमतशिवः ब्रह्माणमावाहयामि प्रजातमावाहयामि पितामहमावाहयामि हिरण्यगर्भावाहयामि ब्रह्मस्येदमासनं सोमोधनं सोमरन्तमा सोमो वीरं कर्मणि दातु साधन्यं तिकं सभें पितृश्राणमेदा तस्मै सोममावाहयामि ज्ञानमावाहयामि इन्दुमावाहयामि चन्द्रमावाहयामि सोमस्येदमासनं ब्रह्मन् प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षज्ञं देवतावद्यतन्नागस्तुष्टेजमानोऽस्तु सप्तर्षीणागं सुतां मित्रलगस्तत्रेवं यज्ञं यजमानच्छतेहि ओं प्रोक्ष सोमप्रोक्षिष्यामि प्रोक्षज्ञं देवतावद्यतन्नागस्तुष्टेजमानोऽस्तु सप्तर्षीणागं सुतां मित्रलगस्तत्रेवं यज्ञं यजमानच्छतेहि ओं प्रोक्ष पात्रादादावमाधाय पवित्रेः स्तवैष्णव्येऽस्थग्नेः स्तवायुभूतेऽस्थो विष्णोर्मनसा भूतेऽस्थग्निस्तभावनेऽस्थः परसरसपवित्रेः स्तवैष्णव्यो देवसवितप्रसवना तुच्छिद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यसरस्मिरापो देवीरग्रे भुवोग्रे भुवोग्रिं यज्ञं नेताग्रे यज्ञमतिं दत्त युष्मानिन्द्रमत्तूर्य युवमिन्द्रमत्तूर्य लक्षता विष्णुस्तुपोसि पश्चिमस्तवधत्तान् देवेभ्यः विष्णुस्तुपोसि उत्तरदवदेः चेरञ्जन्म विष्णुस्तुपोसि घृतासि घृतासि ध्रुवासि तारणासि वानस्पत्यो देवेभ्यः सन्दस्व ब्रह्मण्णवः प्रणेष्यामि यजमानवादमिच्छा प्रणयज्ञं देवतावर्ध्यतन्नागस्तविषयजमानोऽस्तु सप्तर्षीणागं सुता मित्रलगस्तत्रेयं यज्ञं यजमानच्छदेहि ओं प्रणय सोमापः प्रणेष्यामि यजमानवादमिच्छा प्रणयज्ञं देवतावर्ध्यतन्नागस्तविषयजमानोऽस्तु सप्तर्षीणागं सुता मित्रलगस्तत्रेयं यज्ञं यजमानच्छदेहि
ओम प्रणया दक्षिण प्रेदो ब्राह्मण तीर्थेन प्रजापतिमावाहयामि इंद्रमावाहयामि अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि अग्निशोमावाहयामि प्रजापतिमावाहयामि ब्रह्माण्डमावाहयामि इंद्रमावाहयामि सोनावाहयामि अर्थमावाहयामि रुद्राणावाहयामि अपोपस्पृश्य ओम श्री महाविष्णुमावाहयामि बृहस्पतिमावाहयामि मित्रमावाहयामि वर्णमावाहयामि आदित्यानावाहयामि विष्णुमावाहयामि भूषणमावाहयामि कक्षमावाहयामि कक्षसोमावाहयामि उपासनयज्ञमावाहयामि यज्ञे देवान् देवानावाहयामि सर्वदेवानावाहयामि आज्यभागे प्रजापतिष्ठनभां इन्द्राष्टनभां अग्नेष्टनभां सोमाष्टनभामि अग्नेष्टनभां सोमाष्टनभां अग्निसमाहाभ्यानिष्टनभामि प्रजापतिष्ठनभां ब्रह्मणेष्टनभां इन्द्राष्टनभां वसुभ्योष्टनभां रुद्भ्योष्टनभामि रुद्रेभ्योष्टनभामि अपोपस्पृश्य ओम श्री महाविष्णवेष्टनभामि मित्राष्टनभां वरुणाष्टनभां आदित्येभ्योष्टनभां वसुभ्योष्टनभां भूषणेष्टनभामि कक्षाष्टनभामि कक्षसोमाष्टनभामि अवपासनयज्ञाष्टनभामि यज्ञदेश्वेभ्यो देवेभ्योष्टनभामि सर्वदेवेभ्योष्टनभामि आज्यं त्रिप्रतिश्रयामि चरं त्रिप्रतिश्रयामि अग्ने ज्योतिषि अमृतस्य स्वाहा अमृतस्वारणमसि अन्तर्दं रक्षान्तर्धारातयः प्रतिष्ठारक्षप्रतिष्ठारातयः चिक्पै स्वाप्ना त्वच्छद्रेण वैत्रेण सोत्सुरसृष्टे स्वाहा वाक्पतिस्थापना त्वच्छद्रेण वैत्रेण सोत्सुरसृष्टे स्वाहा देवस्थापना अध्यक्ष अक्षता ईशानाय नमः ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः अग्नेय नमः जातवेसे नमः सोऽसे नमः वरप्रसे नमः पंक्तिरासे नमः सर्पणे नमः वैश्वानराय नमः अग्निपुरुषाय नमः अयतेन मन्यस्वा अनुमतेन मन्यस्वा सरस्तेन मन्यस्वा देवहितप्रसवा षष्ठशतसहस्राः नितमक्षमर्भदमानया अन्त्यत्मा आत्मा जातवेदस्तेनेतस्य वदे जयद्वदेजास्मान् प्रजया ब्रह्मोत्सेनान्नाद्येन समेदया अस्मिन् औपासनाण्डे ब्रह्मन् समिद्धम् आदास्ये आधस्वा समेदे स्वाहा वायुव्यादाग्नेयान्तं प्रजापते स्वाहा निरित्यादेशानान्तम् इन्द्राय स्वाहा अग्नेय स्वाहा सोमाय स्वाहा अग्निशोमाभ्याय स्वाहा प्रजापते स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा इंद्राय स्वाहा वसुभ्य स्वाहा मरुद्भ्य स्वाहा रुद्रेभ्य स्वाहा अपोपस्पृश्य ओम श्री महाविष्णवे स्वाहा बृहस्पते स्वाहा मित्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा आदित्येभ्य स्वाहा अश्वभ्याय स्वाहा भूषणे स्वाहा कक्षाय स्वाहा कक्षदे सोमाय स्वाहा उपासनयज्ञाय स्वाहा अग्निदिष्वेभ्यो देवेभ्य स्वाहा सर्वदेवेभ्य स्वाहा ओम भू स्वाहा ओम भो स्वाहा ओम स्व स्वाहा ओम भूर्भो स्व स्वाहा इते नमः गुस्थाः नमते नमः गुस्थाः सरस्ते नमः गुस्थाः देवदेवताप्रासावीः ओम भूतिविरोक्तिष्ठायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गम् आघार होमान्ते स्वरमन्तरवर्यातरणात् प्रास्तात् मतो देवादिवैष्णवं होष्ये ऐतेन मनस्वा नमतेन मनस्वा सरस्तेन मनस्वा देवदेवताप्रसवा ओम मतो देवाहन्तरदौष्णुचक्रमे दिव्या सप्तां विस्वाहा इदं विष्णुचक्रमे त्रिधानि देवदं समूढमस्वां श्रेय स्वाहा त्रीणिपदाचक्रमे विष्णुगोपादाभ्यातधर्मान् धारयन् स्वाहा विष्णु कर्माणि पश्येतो आवृतानि पश्ये इन्द्रस्य सखा स्वाहा तद्विष्णोः परं पदं सदा संसूरयः दिव्यचक्षादग् स्वाहा तद्यप्रासवन्यवाजार्धभागं तस्मिन् ते विष्णोऽर्त्रं पदग् स्वाहा ओम भू स्वाहा ओम भो स्वाहा ओम स्व स्वाहा ओम भूर्भुवः स्व स्वाहा ऐते नमः गुस्थाः नमते नमः गुस्थाः सरस्ते नमः गुस्थाः देवसविताः प्रासावीः ఆడరు పాడరు అప్సరు గణము ఆడరు పాడరు అప్సరు గణము వీడే మూలిందరు విభవము నేడు వీడే మూలిందరు విభవము నేడు ఆడరు పాడరు అప్సరు
కమలారమణుని కళ్యాణమునకు తమి వెలయగలక్ష్మీ విభుని పెండ్లికిని వలసి అంకురార్పణమదివో श्री विघ्नोर्नवम् अथ भगवतो महापुरुषस्य श्रीमतादिनारायणस्य अचिन्त्यापरिशक्त्या भ्रेमाणस्य महाजलौघस्य मध्ये परिभ्रमणानाम् अनेककोटिब्रह्माण्डानां यगतमे पृथिव्यप्तेज वायुवाकाशाहङ्कारमदव्यक्ताक्षसप्तावृणीरावृते अस्मिन् महति ब्रह्माण्डे आधारहित्य श्रीवराह कुर्मानन्दाष्टदिग्गुरोः परिप्रतिष्ठितानाम् अतल वितल सतल नितल प्रतल महातल सातल तलातल सप्तपातालाक्ष सप्तलोकानाम् ऊर्ध्वभागे भूलोक भुवर्लोक सुवर्लोक महर्लोक जनोलोक तपोलोक सत्यलोकाख्य षण्लोकानाम् अधोभागे महानारायमानस्य मणिराजस्य शेषस्य सहस्रफणामणिमण्डलमण्डिते ऐरावतपुण्डरीकवामनकुमुदाञ्जन पुष्पदन्तसार्वभौम सुप्रतीकाख्य अष्टदिग्दण्डसुण्डादण्डोत्तम्बिते अमरावती तेजोवती संयमनी रक्षावती सिन्धुमती गन्धवत्यलकावती यशोवती इत्यष्टदेवपुरी विराजते इंद्राग्नेयमनिरति वरुणवायुकुबेरीशानाख्य अष्टलोकपालकपरिपालिते लोकालोकचलवलयिते लवणेक्षुसरासर्पितधिक्षीरशुद्धोदकाख्य सप्तानवपरिवृते जम्बूप्रक्षक्कुचक्रं च सकशान्मणिपुष्करागाख्य सप्तद्वीपद्वीपते माहेन्द्रमले सह्यदृक्तमदृक्तमद्विन्द्यपर्यात्राख्य सप्तकुलपर्वतविराजिते भारतकिंपुरुषहारीडावतभद्राश्वकेतुकपालकरमणककुरुवर्षाख्य नववर्षाणां मध्ये भरतवर्षे महासरोवराकार 50 योजन विस्तीर्ण भूमंडले लक्षयोजन विस्तीर्ण जम्बोद्वीपे दंडकारण्ये प्रजापति क्षेत्रे कर्मभूमौ अवंति कुरुक्षेत्रादि समभूमध्यरेखायाः पूर्वदिग्भागे श्री आदिवराह क्षेत्रे मम अनेक जन्मसु हे जन्मनि च यदक्षिणपर्यन्तं बाल्ययौवन कौमार वार्धिकेषु रहस्य प्रकाशे च आवृत्त अनावृत्त महापातकादि समस्त दुरितक्षयार्थं दशपूर्वेषां दशापरेषां मत्वंशानां मातृवंशानां सर्वेषां पितॄणां कुम्भीभागलोहितदामासङ्घातपकालसूत्रादि विदेभ्यो महाघोरेभ्यो नरकेभ्यः उत्तीर्य तले सूर्यमण्डलपर्यन्तं कृतेराशीर्वसहस्रावसाने एकैकतिलापकर्षक्रमेण सर्वराष्ट्रपकृतसंहितकाले श्रीहरिलोके निवासिद्ध्यर्थं त्रिगुणीकृत अग्निष्टोमद्राप्ताप्तोर्यामशान्तमणिवाजपेयपौण्डरिकाश्वमेधादि शतकृतपुण्यफलावात्यर्थम् आमोद प्रमोद सम्मोद वैकुण्ठाख्यलोकेषु
सालोक्य सारूप्य सामीप्य सायुज्य चतुर्विधमोक्षफलसिद्धर्थं परव्यूह अंतर्यामि अर्चावतारस्वरूपरुणैः भृग्वादिभिर्मन्वादिभिर्दिव्यवशिष्टादियुक्तगृह कन्यादानकल्पोक्त कन्यादानमहादानं करिष्ये। अस्य श्रीमदादि नारायणस्य अनेककोटिब्रह्माण्डनायकस्य अनन्तकल्याण गुणगणगाम्भीर्यस्य दिव्यमङ्गलविग्रहस्य शङ्खचक्रगदापद्माङ्कित कोटिसूर्यप्रकाशकस्य श्रीमतो वैकुण्ठनायकस्य श्रीमद्वैखानस आगमोक्तप्रकारेण आङ्गीरस बार्हस्पत्य भारद्वाज त्रयार्षेयप्ररान्वित भारद्वाजगोत्रोद्भवस्य परव्यूह अन्तर्यामि अर्चावताररूपस्य श्रीमहाविष्णोः परब्रह्मणोर्नप्त्रीम् आङ्गीरस बार्हस्पत्य भारद्वाज त्रयार्षेयप्ररान्वित भारद्वाजगोत्रोद्भवस्य जगत्कारणभूतस्य मूलप्रकृति स्वकीयमानस्य त्रिगुणात्मकस्य गुणत्रयकर्मणो ख्यातिवशात् उत्पत्तिस्थितिलयकारणभूतस्य श्रीमहाविष्णोः परवासुदेवशर्मणः पौत्राय आङ्गीरस बार्हस्पत्य भारद्वाज त्रयार्षेयप्ररान्वित भारद्वाजगोत्रोद्भवस्य समस्तदेवतागण निकुटमकुटमणिगण विजृम्भित पादारविन्दस्य श्रीमहाविष्णोः आदिनारायणशरणः पुत्राय आङ्गीरस बार्हस्पत्य भारद्वाज त्रयार्षेयप्ररान्वित भारद्वाजगोत्रोद्भवाय भक्तलोकपरिपालनाय किरीटहार केयूर दिव्याभरणभूषिताय कौस्तुभालङ्कृताय दिव्यपीताम्बरधराय निजावताराय स्वर्णगरुडवाहनारूढाय अचिन्त्यदिव्याद्भुत नित्ययौवन स्वाभावलावण्य तेजो रत्नाकराय अखिलशाखाध्यायिनो श्रवणनक्षत्रे मकररासु जाताय श्री श्रीनिवासस्वामी परब्रह्मणे वराय ऋग्यजस्सामधर्वण सकलवेदाध्यायिनीं भार्गवच्चवनप्नुवान और्ववेदिलपञ्चार्षेप्रराणित भार्गवसगोत्रोद्भवीं सर्वालङ्कारवतीं सुराङ्गना संसेवित पादारविन्दां श्रीमहाविष्णोः वक्षस्थलनिवासिनीम् अनन्तगुणात्मिकां भृगोसङ्कल्पतनयां भार्गवीम् उत्तरफल्गुनीनक्षत्रे कन्यारासु जातायां श्री श्रीदेवी नाम्नीम् इमां कन्यां ऋणीत्वमे दास्यामि। ऋग्यजस्सामधर्वण सकलवेदाध्यायिनीं काश्यपावत्सारणैर्ध्रुवत्र्यार्षेप्रराणित काश्यपसगोत्रोद्भवीं सर्वालङ्कारवतीं सुराङ्गना संसेवित पादारविन्दां श्रीमहाविष्णोः अत्यन्तमनोहरीं कश्यपप्रजापतेः सङ्कल्पतनयां काश्यपीं रेवतीनक्षत्रे मीनरासु जातायां श्रीभूदेवी नाम्नीम् इमां कन्यां ऋणीत्वमे दास्यामि। कन्यां कनकसम्पन्नां कनकाभरणैरुतां दास्यां विष्णवे तुभ्यं ब्रह्मलोकं जिगीर्षया सालङ्कृतां मां साध्वीं सुशीलाय सुमेधसे प्रेतोऽहं प्रयच्छामि सर्वकाम्यार्थसिद्धये विश्वम्भरा विश्वरूपा साद्गुण्य सर्वदेवताः इमां कन्यां प्रदास्यामि। श्रीनाथ कमलापतिः कन्यादानसमुहूर्तोऽस्ति भवन्तो महान्तो न गृह्णन्तु सुमुहूर्तोऽस्तु। பூஜையை செவிக்க இருக்கிறோம். பக்தர்களே, புரட்டாசி மாதம் 2வது நாள், அதாவது புரட்டாசி மாதம் பிறந்து விட்டது. பகவானுக்கு விசேஷமான சனிக்கிழமைகள், அதுவும் இன்றிலிருந்து மாலையா பட்சம், அதாவது பித்ருக்கடன்களுக்கு தீர்க்க வேண்டிய இந்த 15 நாட்களும் அதாவது நாட்கள். அப்படி அந்த திருமலையப்பனுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே நேற்று நாம் சேவித்தது அனந்த பத்மநாப விரதம், அனந்த சதுர்தசி. மிகவும் சிறப்பு வாய்ந்த இந்த பண்டிகையை நேற்று கொண்டாடினார்கள். கேரளத்திலே ஓணம் என்றும் நம்முடைய பிரதேசத்திலே அனந்த சதுர்தசி விரதத்தையும் செய்து கொண்டு இன்று இப்பொழுது பகவானுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே செவித்து கொண்டிருக்கிறோம். திருவனந்தபுரம் என்றால் மிகவும் பிரசித்தி பெற்ற ஒரு கோவில், பரசுராம க்ஷேத்திரம் என்பார்கள்.
அந்த பரசுராம க்ஷேத்திரத்திலே நித்தியவாசம் செய்து கொண்டிருப்பவன் அனந்த பத்மநாபன். அதாவது அந்த அனந்த பத்மநாப கோவிலுக்கு வந்துவிட்டு திருவட்டாறு கோவிலுக்கு வந்தால் மீண்டும் திருவனந்தபுரம் பத்மநாப சுவாமி கோவிலுக்கே வந்துவிட்டோமோ என்ற ஒரு எண்ணம் ஏற்படுமாம். அந்த விதமாக தத்ரூபமாக இந்த 2 கோவில்களின் அமைப்பும் ஒரே மாதிரியாக இருக்குமாம். திருவனந்தபுரம் அதாவது அனந்த பத்மநாப சுவாமி கோவிலுக்கு 1248 ஆண்டுகள் முற்பட்டது இந்த திருவட்டாறு கோவில். இதிலே அந்த ஆதிகேசவ பெருமாள் இந்த தலத்திலே பள்ளி கொண்டு பக்தர்களை காத்து வருவதற்கு ஒரு காரணமாம். அப்படி என்ன அந்த காரணம் என்று பார்க்கும் பொழுது, பிரம்மதேவன் தக்ஷண மேருவிலே உள்ள காஞ்சனகிரியிலே விஷ்ணு தரிசனம் கிடைப்பதற்காக அதர்வண வேதத்தை உச்சரித்து ஒரு யாகம் நடத்த ஆரம்பித்தாராம். பிரம்மனின் மந்திர உச்சரிப்பில் அபஸ்வரம் கலந்ததால் தீ படர்ந்து எரிந்து ஆகாயம் வரை சென்றதாம். அந்த தீயிலிருந்து கேசன் கேசி என்ற 2 அரக்கர்கள் தோன்றினார்களாம். கேசன் மலைய பர்வதத்திலும் அமர்ந்து பிரம்மாவை நோக்கி தவமிருந்தான். மேலும் பல வரங்கள் கேட்டு தன்னுடைய தவ வலிமையை பெருக்கிக் கொண்டான். தேவர்களையும் முனிவர்களையும் துன்புறுத்தினானாம். கேசனின் தங்கையான கேசி ஒருமுறை நாகலோகம் சென்று அங்கே இந்திரனை கண்டு அவனுடைய அழகில் மயங்கி தன்னை மணந்து கொள்ளுமாறு கேட்டாளாம். இந்திரன் அதற்கு மறுக்கவே தன்னை உதாசீனப்படுத்தியதால் அவனை பழிவாங்க நினைத்தாளாம் கேசி. இந்திரன் தன்னை பலாத்காரம் செய்ய முயன்றதாக கேசி கூறவே கோபாவேசத்துடன் இந்திரனை தேடி நாகலோகம் செல்லுகிறான் கேசன். இந்திரனோடு 7 நாட்கள் கடுமையாக போரிட்டு இறுதியில் கேசன் வெற்றி பெற இந்திரன் ஓடி ஒளிகிறானாம். கேசன் அரம்பையர்களை சிறைப்பிடிக்கிறான். சூரியனை, சந்திரனை, தேவர்களை அவமானப்படுத்துகிறான். 30 முக்கோடி தேவர்களும் ஒன்றாக கூடி பகவானிடம் முறையிட பகவான் விஷ்ணு கருடன் மீதியேறி கேசனுடன் போரிடுகிறார். ஆனால் சாகாவரம் வாங்கிய கேசனை பகவானால் கொல்ல முடியவில்லை. அப்பொழுது பராசக்தி விஷ்ணுவிடம் அவனை கொல்ல முடியாது, அவன் மரணமற்றவன், ஆதிசேஷன், கேசனை சுற்றி வளைத்து அரண் கட்டட்டும், நீ அதன் மேல் சயனிப்பாய் என்று கூற பகவானும் அரக்கனை வீழ்த்தி ஆதிசேஷனின் அரவணைப்பிலே அடங்குமாறு செய்து அவன் மேல் பள்ளி கொண்டாராம். ஆதிசேஷனின் அரணிலே கேசன் அடங்கிவிட்டதை கண்ட கேசி கங்கை நதியை தியானித்தாளாம். கங்கை 2 நதிகளாக பிரிந்து வந்தாள். அவை ஆதிகேசவனையே அழிக்க ஆக்ரோஷத்துடன் ஓடி வந்தன. உடனே பூதேவி பரந்தாமன் இருட்டிலே உருவம் தெரியாவிட்டாலும் தன்னுடைய பாதங்களை, அதாவது உடனே அந்த பூதேவியானவள் பரந்தாமனிடம் சென்று சரணாகதி செய்தாளாம். அவ்வாறாக ஏற்பட்டதுதான் அந்த திருவட்டாறு கோவிலானது. அப்படி அனந்த பத்மநாப சுவாமியை நேரிலே சேவித்தோம். அதேபோல் மானசீகமாக சேவித்து கொண்டு இதோ இப்பொழுது நாம் சேவித்து கொண்டிருப்பது மாங்கல்ய பூஜை. அதாவது ஒவ்வொரு க்ஷேத்திரத்திற்கும் ஒரு சரித்திரம் உள்ளது, ஒரு கதை உள்ளது. அவற்றை தெரிந்து கொண்டு நம்மால் முடிந்தவரை அந்த க்ஷேத்திரத்திற்கு சென்று அங்கே எழுந்தருளிருக்கும் பகவானை நாம் சேவித்தோமானால் நமக்கு அனைத்து விதமான நலல்களையும் அருளிச் செய்வார் அந்த பகவான். அப்படித்தான் திருமலையப்பனை கூட நாம் சேவிக்க வேண்டும். திருமலையிலே எழுந்தருளிருக்கும் பகவானை சேவித்து கொண்டு இதோ அவனுடைய கல்யாண உற்சவத்திலே நாம் நேரடி ஒளிபரப்பில் மாங்கல்ய பூஜையை சேவித்து கொண்டிருக்கிறோம். பகவானே வேங்கடவனே கோவிந்தா 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 என்று பகவானை சேவிக்கும் பொழுது அவனுடைய நாச்சிமார்களுக்கு மாங்கல்ய பூஜை நடைபெற்று, அந்த மாங்கல்யங்களுக்கு மாங்கல்ய பூஜை நடைபெற்று இப்பொழுது மாங்கல்ய தாரணம் செய்ய உள்ளார் அர்ச்சக சுவாமி. சேவிக்கலாம் மாங்கல்ய தாரணத்தை.
லக்ஷ்மீ ரமண கோவிந்தா, தராரமண கோவிந்தா, கோவிந்தா என்று விவரேதனாம் ஸ்ரீயே ஜாதஸ்ரீ ஆனிர்யாய ஸ்ரீ அம்பஜோ திருதிருभ्यो தாதி ஸ்ரீ அம்பசானாமிருதத்தமாயன் பவந்தி சத்யா சமிதாம் தத்ரௌः மாங்கல்யம் தந்துநானேன லோகரக்ஷண ஹேதவே கண்டே பத்ராம் சுபகே ரக்ஷத்வம் புவனத்ரயம் ஸ்ரீதேவ்யை நமः மாங்கல்யதாரண சமுர்த்தோஸ்தி பவந்தோ மகாந்தோ நிருண்ணந்து சுமுகூர்த்தோஸ்து சுப்ரதிஷ்டிதமஸ்து. प्रजापतिस्त्वामगं राजा नमसृजत तन्त्रयो वेद अन्वसृज्यन्त तान् हस्ते कुरुत अथा सीता सावित्री स्वमङ्गलीर्यं वधूरिमागुं समेत पश्यत सौभाग्यमत्वै दत्त्वा जाधास्तं विपरेतनां मेदिनी देवी वसुन्धरा स्यात् सदा देवी वासवी ब्रह्मवर्चसः पितॄणां श्रोत्रं चक्षुर्मणः भूदेव्यै नमः माङ्गल्यधारणसमुहूर्तोऽस्ति भवन्तो महान्तो न गृह्णन्तु सुमुहूर्तोऽस्तु सुप्रतिष्ठितमस्तु.
तर्जन्यस्य सुष्मेणोदस्थामृतागं हनु विश्वावदत्त्वया विजं धारावधन्यायव अतिगाहे महिद्विषः इमां राजानापामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यन्तसंवरणां सदग्निर्नमन्यतां यन्नार्यव ब्रूते अग्नौ राजानवपन्ति दीर्घायुरस्तरेपतिरेदन्तां ज्ञातयो मम स्वाहा उदाजसा स्वायुषो दोहिदीनागमृसेनोत्तर्जन्यस्य सुष्मेणोदस्थामृतागम् अनु विश्वावदत्त्वया विजं धारावधन्यायव अतिगाहे महिद्विषः इमां राजानापामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यन्तसंवरणां सदग्निर्नमन्यतां यन्नार्यव ब्रूते अग्नौ राजानवपन्ति दीर्घायुरस्तरेपतिरेदन्तां ज्ञातयो मम स्वाहा उदाजसा स्वायुषो दोहदेनागमृसेनोत्तर्जन्यस्य सुष्मेणोदस्थामृतागम् अनु विश्वावदत्त्वया विजं धारावधन्यायव अतिगाहे महिद्विषः ओं भूस्वः ओं भूस्वः ओं स्वस्वः ओं भूर्भुवस्वः स्वाहा इति नमगस्थाः नमते नमगस्थाः सरस्ते नमगस्थाः देवसवितः प्रासावीः ओं भूवतिपुरोक्तिष्ठायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं लाजहोमान्ते स्वरमन्त्रपर्यातनात्तप्रास्तात् मतो दिवादिविष्णुं मोक्षे ऐतेन मन्यस्वा नमतेन मन्यस्वा सरस्तेन मन्यस्वा देवतपस्वा ओं मतो देवाहं विष्णुचक्रमे दिव्या सप्तधां विस्वाहा इदं विष्णुचक्रमे त्रयधानि देवतं समूढस्वां श्रेय स्वाहा त्रीणिपदाचक्रमे विष्णुगोपादाभ्यासधर्मान् धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्माणि विस्तेतोः प्रधान विश्वेन्द्रस्य जसखा स्वाहा तद्विष्णोः परमपदं सदा संसूर्यः दिव्यचक्षादग् स्वाहा तद्यप्रासभिन्नभोजार्ध्रवागं दशविन्दते विष्णोरत्परं पदग् स्वाहा ओं भूस्वाहा ओं भूस्वाहा ओं स्वस्वाहा ओं भूर्भुवस्वस्वाहा ऐतेन मुखस्थाः नमतेन मुखस्थाः सरस्वतेन मुखस्थाः देवसवितप्रासावीः ओं भूवतिपुरोक्तिष्ठायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं कर्मसाफलतं पृष्ठातन्त्रं करिष्ये ऐतेन मन्यस्वा नमतेन मन्यस्वा सरस्तेन मन्यस्वा देवसवितप्सुभा यदस्य कर्मणो तीर्थं विद्यानं विहाग्रम् अग्निस्वष्टष्टाकृतं करोतु स्वाहा अग्नेः षष्ठगते सतहतादीनां कामान् समुद्रत्रे स्वाहा अग्नेय स्वाहा अग्नेनादाय स्वाहा अग्नेनपते स्वाहा प्रजापते स्वाहा इंद्राय स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्य स्वाहा सर्वाभ्यो देवताभ्य स्वाहा सर्वत्रैवादिष्टं सर्वत्रैवानाष्टं देवतमस्मै स्वाहा अग्नेः षष्ठगते स्वाहा वास्तुपते नमो वास्तुपते स्वाहा यन्मात्मना मिन्दाभूदग्निसत्तनराः जातवेदावचिस्ने स्वाहा पुनरग्निश्चक्षुरात्मनेन्द्र बृहस्पति पुनर्म्याश्व्याजमं चिक्षात्मक्षो स्वाहा इष्टेभ्य स्वाहा वसिष्ठेभ्य स्वाहा भेजन्दृष्टे स्वाहा निष्कृत्यै स्वाहा देवराध्यै स्वाहा देवीभ्य स्वाहा तनूभ्य स्वाहा वृद्ध्यै स्वाहा समृद्ध्यै स्वाहा सर्वसमृद्ध्यै स्वाहा आश्रायुधमत्याश्रायुधं षट्कुलमतिनोक्तञ्चयज्ञे अतिरिक्तं कर्मणि चेनं पर्वाणि प्रतिनियति कल्पयन् स्वाहा कृतादेवान् स्वाहा यथोस्तेजमे स्वाहा समितिस्तेजोस्तेजोमेधे स्वाहा यमसधिमें त्योर्मे स्वाहा सूर्यधीमे चक्षुर्मे स्वाहा सोमसधिमे चित्तमे स्वाहा वायोर्धीमे प्राणन्मे स्वाहा ब्रह्मणो धीमे बुद्धिमे बाहि स्वाहा सप्ते अग्नि सप्ते सप्तिफा सप्ते सप्ताम प्रियाणि सप्तहोत्रा सप्तात्वान्ति सप्तयोनिरावण स्वागतेन स्वाहा अग्निर्भुक्तं वेदिर्भुक्तं देवर्भुक्तं पतिर्भुक्तं औषधस्कन्धरासेभुक्तं अग्निर्जीर्णं वेदिर्जीर्णं देवजीर्णं पतिर्जीर्णं औषधवनस्पतिगन्धर्वासेश्चैव जीर्णम् रुददान विद्वानुष्टब्दतेन पूर्णमहतिञ्जुः मनसा प्रजापतये स्वाहा सप्तते अग्ने सप्त सप्तिफा सप्तशे सप्ताम प्रियाणि सप्तहोत्रा सप्तात्वा इंदी सप्तयोनिरावण स्वागतेन स्वाहा अग्निस्त्रिपदो वेदस्त्रिपदो द्योस्त्रिपदो बुद्धिस्त्रिपदो ब्रह्माद्यास्त्रिप्यन्ताम् ओषधवनस्पतिर्वासेत्रिप्यन्ताम् यदक्षिप्यता महाप्रतामः साक्षीमस्तत्रिप्यन्ताम् तेन मुखस्थाः अनुमतेन मुखस्थाः सरस्तेन मुखस्थाः देवताप्रासावीः पवित्रमस्य पवित्रं मे भूयात् स्वाहा अक्षतमामेः चेष्टाः राज्याः राज्यां विष्णु सदनमसि सर्वान् समूह्य ग्रन्थिं विसृज्य अद्भिः प्रोक्ष आप्यायन्त्वामिति जुहोति आप्यायन्त्वामा भवोषधेवमृतम् शुद्ध्यन्तां देवसदनं
भूतस्मादेलपदे नित्यं सर्वयज्ञकृतं भवेत् अग्निमारुतयोद्भूतिः आदित्यः सोमो नमः त्रियायुषं जमदग्ने कश्यपस्य त्रियायुषं देवानां त्रियायुषं तन्मे अस्तु त्रियायुषं दीर्घायुत्वाज बलाज शताज शतं च वर्तते त्रियायुषम् दीर्घायुत्वाय बलाय शताय शतं च वर्तते त्रियायुषम् आपोहिष्ठामि अभवस्थानं भूतेदादना मेघनायिके यत्तेऽग्ने वर्चस्वेनाहं वर्चस्वे भूयासं यस्तेऽग्ने हरस्तेनाहं हरस्ते भूयासं मयि मेधां मयि प्रजां मयि अग्निस्तेजो ददातु मयि मेधां मयि प्रजां इन्द्रियेन्द्रियं ददातु मयि मेधां मयि प्रजां मयि सूर्यो ददातु जोक्षसूर्येन्द्रिये यवदगान्मातोर्नवाः दुभ्राजमानसरसमध्यासमार्भो रोहिताक्षसूर्यो प्रसन्मनसा पुनातु कायेन वाचा मनसेन्द्रियेण विद्यात्मना वाद स्वभावात् करोमि यद् सकलं परस्मै श्रीमन्नारायणाय समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः भास्तानं निवेदयामि अग्निवर्गाय नमः पुरोभानं निवेदयामि आज्ञाभानं निवेदयामि अग्निम् आदित्यं प्रगच्छ सर्वं श्रीभूनिलासमे श्रीनिवासार्पणमस्तु। ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. கோவிந்தா கோவிந்தா. திருமலை அப்பனுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே நாம் இப்பொழுது சேவிக்க இருப்பது வாரணமாயிரம் கைங்கரியம். வாரணமாயிரம் என்பது ஆண்டாளுடைய கனவின் பாசுரங்களை கூறிக்கொண்டே அந்த கதைகளை தன்னுடைய தோழிகளுக்கு கூறும் படலமே இந்த வாரணமாயிரம். அதாவது பெரியாழ்வாரின் பெண்ணாக ஸ்ரீவில்லிபுத்தூரிலே எழுந்தருளியவள் ஆண்டாள் பூமி பிராட்டியின் அம்சமாக பாமாலைகளுடன் பூமாலைகளையும் தொடுத்து அந்த பகவானுக்கு சமர்ப்பிப்பதில் தந்தைகாருக்கு உதவியாக இருப்பவள். அப்படிப்பட்ட ஆண்டாள் தான் அந்த கண்ணபிரானை திருமணம் செய்து கொண்டதாக கனவு கண்டு தன்னுடைய தோழிகளுக்கு கூறும் பாசுரங்களை பாடிக்கொண்டே தேங்காய்களை உருட்டினார்கள். அதைத் தொடர்ந்து இப்பொழுது நாம் செவிக்க இருப்பது மாலா பரிவர்த்தனம், மாலைகளை மாற்றுவது. வாசனையுள்ள புஷ்பங்களை கரங்களிலே வைத்துக்கொண்டு பகவானிடம் தியானம் செய்து என்னுடைய கோரிக்கைகளை தீர்க்க வேண்டும் என்று மனமுருகி பிரார்த்தனை செய்தால் அந்த பகவான் அருளி செய்வார். அப்படிப்பட்ட அந்த புஷ்பங்களை மாலைகளாக தொடுத்து பகவானுக்கு அனுப்புகிறாள் ஆண்டாள். அந்த மாலையானது இப்பொழுது முதலில் ஸ்ரீதேவி பிராட்டிக்கும் அடுத்து பூமி பிராட்டிக்கும் சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது. இதோ ஸ்ரீதேவி பிராட்டிக்கு கழுத்திலே சமர்ப்பித்தார் அர்ச்சக சுவாமி, லக்ஷ்மி ரமண கோவிந்தா கோவிந்தா என்று. அடுத்து அந்த ஸ்ரீதேவி பிராட்டியினுடைய தோள்களை அலங்கரித்த மாலையானது எம்பெருமானுடைய தோள்களை அலங்கரிக்கிறது. அதை கொண்டு சென்று அணிவிக்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. சப்தகிரி வாசனே வெங்கடவனே கோவிந்தா கோவிந்தா என்று அதே மாலையை திரும்பவும் பூமி பிராட்டிக்கு கொண்டு சென்று அணிவிக்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. பூமி பிராட்டியும் அந்த மாலையை ஏற்றுக்கொள்ளுகிறாள். தராரமண கோவிந்தா கோவிந்தா என்று அந்த மாலையை சூடி களைந்து திரும்பவும் அந்த மாலையானது பகவானுக்கே உரித்தாகும், பகவானுக்கே சமர்ப்பிக்க வேண்டும் என்ற எண்ணத்துடன் அனுப்புகிறாள். மீண்டும் அந்த மாலையை கொண்டு வந்து பகவானுடைய தோள்களை அலங்கரிக்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. ஸ்ரீ வெங்கடேசா ஸ்ரீ சீனிவாசா கோவிந்தா கோவிந்தா என்று. இப்பொழுது ஸ்ரீதேவி பிராட்டியையும் பூமி பிராட்டியையும் எம்பெருமானுடைய பக்கத்திலே
ஆசீனப்படுத்தி ஒரே சிம்ஹாசனத்திலே அமரச் செய்கிறார்கள். அதைத் தொடர்ந்து அந்த அர்ச்சக சுவாமி அக்ஷதாரோபணம் என்னும் தலம்பராலு கைங்கரியத்தை செய்ய உள்ளார். அக்ஷதாரோபணத்தை தொடர்ந்து மங்கள நீராஜனத்துடன் திருக்கல்யாண மகோத்சவம் நிறைவேறுகிறது. கோவிந்தா கோவிந்தா, லக்ஷ்மி ரமண கோவிந்தா, அம்மா தராரமண கோவிந்தா கோவிந்தா. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు. తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు. ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि. हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद. प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ.